On this beautiful day, I, Manvi, and I'm Muskan. is pleased to welcome each and every one of you to a brainstorming 9th National Conference on Strategies and Challenges for Inclusion. As per Indian tradition, we do not start any educational event without acknowledging the goddess of knowledge, Ma Saraswati. Now, I would say that light and brightness has always been equated with positivity. Now, we will have lamp lighting ceremony. Our Deputy Director Sanjana Mittal ma'am to kindly come up on the stage and present welcome address for the conference. Thank you. So I, on behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, welcome all my dear participants, my students, and our chief guests for the day, that is Dr. Saurabh Mehlotra, Dr. Ajay Rathore, sir, he's a director from Technia Group of Institution, that is Technia Institute of Advanced Studies, with more than 30 years of experience working in an advanced college. I welcome Dr. Bijender Sindhu. He is a director from SDT University, Gurgaon. Welcome you, Dr. Bijender Sindhu, sir. We have two guests over here, Dr. Naveen Singh and Dr. Bharat Narayan from MIT University. A grand welcome to you, sir, because your expertise today would be shared by the students. On behalf of Ashtavakra Institute, I welcome you, sir. We have with us Mrs. Madhu Agarwal, ma'am, principal from Technia Group of Technia Institute of Art and Design, with more than 35 years of experience, versatile experience in fine and arts. So welcome you, and today she is there with us. We are proud enough that she is here to share her expertise also with us, because the topic for today's conference is inclusion. So we would like to share all our expertise from all our sister concern also. So without wasting our time, I would like to invite Dr. Ajay Rathore, sir, to kindly come up on the stage and please provide us motivational speech and words of wisdom with us. First of all, I would like to congratulate the Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research that they are doing commendable job as far as the upgradation of the talent and nurturing talent for the special education is concerned in the country. So my best wish to you, madam, and your team to making this event successful. 9th National Conference on Strategies of Promotion of Inclusivity. You are all our CRE people who are going to do the CRE work over there for the special people, special childs they will be requiring, and you have got enormous responsibility on your shoulders. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Hind. यहाँ बैठे हैं वो फ्यूचर की स्पेशल एजुकेशन
टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आप लोगों के लिए ये डांस म्यूजिक के कोर्सेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप थोड़ा सा भी उस तरफ पर ध्यान देकर इस अपने इन कोर्सेज के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, वहाँ पर भी अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यहाँ से विदा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस फॉर प्रमोशन फॉर इंक्लूजन। तो एक कॉन्सेप्ट आया क्रॉस डिसेबिलिटी का, हम लोग कितना उसके बारे में सोचते हैं। व्हाट इज क्रॉस डिसेबिलिटी? वी हैव टू गो डीप इनटू इट, क्योंकि क्रॉस डिसेबिलिटी एक ही बात कहती है कि वी डोंट डिस्क्रिमिनेट इन डिसेबिलिटीज, ऑल डिसेबिलिटीज शुड बी अंडर वन रूफ। तो इंक्लूजन पहले डिसेबिलिटी में होना चाहिए, उसके बाद में बाहर आएगा। दूसरी बात करते हैं कि हमने क्लास में तो बच्चों को बिठा करके बुला दिया, एंड मोस्ट ओवर माई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज दे हैव गॉट ए लो लेवल रीडिंग लेवल। उनका रीडिंग लेवल बहुत कम होता है। बच्चा 6वीं 7वीं में पढ़ता है और उसका रीडिंग लेवल जो है वो 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड के बराबर होता है। तो कैन वी थिंक ऑफ इजी रीड मटेरियल? आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि इजी रीड क्या होता है। तो इजी रीड मटेरियल की बात कर सकते हैं हम बात करते हैं इंक्लूजन की। यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती। कैन वी थिंक ऑफ इंक्लूसिव कम्युनिकेशन? लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या हमारे पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, जिसको यूपी कहते हैं, एंड ये सरकार की तरफ से कंपलसरी करा गया है कि एवरी इंस्टीट्यूट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन ईओपी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी हमारे पास में होनी चाहिए। वहां पर उसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा उसके बारे में कि वी हैव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पर्सन, नंबर 1. Number 2, if a person with wheelchair comes to us, what arrangements we have to make for him? If a person with hearing impairment come to us, what arrangements we have to make for him? So what are the accommodations and modifications have to be made in the working environment, in the building and the teaching environment, all has to come under EOP. So every institute should have EOP, equal opportunity policies. और लास्ट में कहना चाहूंगा कि इंक्लूजन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अवर फैमिली। हमारे परिवार से इंक्लूजन शुरू होता है। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इंक्लूडेड इन अवर फैमिली, ऑल्दो वी आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम करते हैं तो कहते हैं कि क्या बात हो रही है, कहने लगे तुम्हारे मतलब की नहीं है, एक तरफ हट जाओ। क्यों भाई? आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैमिली। तो फैमिली से हम स्टार्ट करें, कम्युनिटी में लाएं, इंस्टीट्यूशंस में लाएं, देश में अपने आप फैल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप कोई भी स्टूडेंट नहीं हो। क्यों नहीं हो स्टूडेंट पता है? आप सारे ट्रेनी टीचर हो, है कि नहीं? आपको टीचर बनना है आगे। अब कितने मानते हैं कि कोर्स करने के बाद हम टीचर बन जाएंगे? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप लोग स्पेशल टीचर हो, स्पेशल एजुकेटर हो। कितने बच्चे ये मानते हैं कि सिर्फ हम स्पेशल एजुकेटर हैं? हाथ उठाओ। नहीं उठाएंगे। तो आप लोग सिर्फ स्पेशल एजुकेटर नहीं हो। अगर मैं कोई सही डेफिनेशन देता हूं तो आप लोग सोसाइटी के ब्रिज हो, एक पुल। और पुल की मैंने डेफिनेशन क्यों दी है? क्योंकि मैं एक क्लिनिशियन हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ, बट मैं क्लिनिशियन ज़्यादा हूँ। मैंने स्पेशली एबल्ड बच्चों को तकरीबन 18 साल से मैंने उनको देखा है। पहला बच्चा मैंने 2003 में देखा था, फिजिकली डिसेबल्ड था, और मैं आज तक भी उन बच्चों के टच में हूँ। जो बच्चा उस टाइम 4 साल का था वो आज 22-25 ईयर का है विद सेम डिसेबिलिटीज़। तो ब्रिज मैंने क्यों कहा?
हमने एक छोटा सा सर्वे किया, मैं हिसार में था उस टाइम पे, तो डीएम और डीएसपी सर से हमारी बात हुई कि सर हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे कहाँ हैं? तो हमने कहा सर आप हमें थोड़ी सी सुविधा दीजिए, हम बच्चे ढूंढ के लाते हैं। तो हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे किया, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का, और हमें वहाँ से 380 बच्चे विद स्पेशल नीड हमने सर्च किए। अब वो सेकेंडरी था कि स्पेशल नीड क्या है, विजुअल, हियरिंग लॉस, ब्लाइंड, फिजिकली, न्यूरोलॉजिकली, वो एक सेकेंडरी मैटर था। लेकिन पहले था कि 380 बच्चे, और सबसे बड़ी बात थी उस स्कूल के टीचर्स को नहीं पता था इसको स्पेशल नीड है। वो सिर्फ एक ही चीज कहते थे, ये बच्चा कुछ नहीं करता, इसके पेरेंट्स सीरियस नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे जाके फिर हमें जरूरत पड़ी एक स्पेशल एजुकेटर की। 2002 के अंदर कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं होता था मैम। तो उस टाइम पे आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन एक होती है इंडियन आर्मी के अंदर, वहां स्पेशल एजुकेटर होते थे। तो हम स्पेशली बच्चों को वहां भेजते थे, और आप मानिए कितना बेनिफिट होता है कि वो एक पेरेंट ही जानता है, क्योंकि ये एक इग्नोरेंस क्लास है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो पहचाना ही नहीं जाता कि वो स्पेशली नीड है उसको। अगर वो पहचान लिया जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 1 या 2 बार उसको अच्छी तरह से अटेंड करता है, तीसरी बार नहीं करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ या बिजनेस उसका नहीं है। फिर थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो भी महीना 2 महीने। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा टाइम बिताएगा वो किसके पास बिताएगा? स्कूल में। और स्कूल में अगर उसको टीचर समझेगा तो बिताएगा। तो आप लोगों के ऊपर तो इतना बड़ा एक जिम्मेवारी है, इसलिए मैंने ब्रीज कहा है। पेरेंट्स आपके पास एडमिशन के लिए आते हैं, आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन हो जो उनको बता सकते हैं कि इनको ज़रूरत क्या है, क्या इनको पेडिट्रिशियन की कंसल्टेशन चाहिए, क्या इनको थेरेपी चाहिए, और टाइप ऑफ एजुकेशन क्या चाहिए। जो वर्ड हमने इंक्लूजन लिया है उसका मीनिंग यही है कि आप लोगों को चारों तरफ से सोचना है। इवन बच्चे की सीटिंग अरेंजमेंट भी सोचनी है, क्योंकि उस बच्चे की स्पेशल नीड है, बैठने से लेके, चलने से लेके, उठने से लेके, इवन की गाड़ी से उतरना और गाड़ी से चढ़ना। तो ये सारी चीज़ें भी एक स्पेशल एजुकेटर को ही डिज़ाइन करनी है और सोचनी है। और जब आप डीपली मतलब दिल से इन चीज़ों को करोगे तो आप फील करोगे कि एक्चुअल में आप लोग स्पेशल एजुकेटर भी नहीं हो, आप उससे बहुत ऊपर हो। The real guest of honor should be you all who are sitting there, because as sir has said that you are the bridge. My connect with the students with special need started with a life-changing experience, and that was way back in 2002 when I met Sudha Chandran ji. So if someone who can connect to the story of Madam Sudha Chandran, I think that was the first thing. I was very young, somewhere in your age group. I was hardly 22, 23 years old, and that was the impact which this lady had put on me. When we talk about inclusion, समावेशन, हर वो व्यक्ति जिसको हमारी आवश्यकता है, जरूरी नहीं है, जैसे अभी सर ने बोला कि लेट अस नॉट जंप to help somebody with disability, and this I believe was my first lesson which I learned. और मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूं. I have been a teacher throughout my life. आपको लाइफ में शायद कोई एक अर्जुन ऐसा मिलेगा जो आपको अपने द्रोणाचार्य होने पर गर्व महसूस करवाएगा, और वो अर्जुन ही है जिसने द्रोणाचार्य की कोई वैल्यू जिंदगी में बनाई थी. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड
not just one Arjun. I would request you to make every student of yours an Arjun. Thank you very much. Good morning, each one of you. First, I would like to welcome all the speakers and chief guest and guest of honor. And definitely, I would like to welcome you all also, because कल का हमारा सेशन था और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था, काफ़ी एंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था. एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि कल भी मैंने नोटिस किया था कि आप लोग बहुत शांति से बैठे थे, और आज भी आप बहुत ही, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग यू ऑल कि इतने अच्छी तरह से शांति से बैठ के आप सीख रहे हो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि संजना मैम एंड सरस्वती मैम, जो इट इज़ रियली व्हाट राठौड़ सर सेड, इट्स अ कमेंडेबल जॉब व्हाट दे आर डूइंग. एंड एज अ स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स तो नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि सर ने जैसे बताया, पूछ रहे थे सर कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर अ ट्रेनी, कि आप टीचर्स हो, फ्यूचर टीचर्स हो या तो फिर स्टूडेंट्स हो. पर मेरे लिए एक ही शब्द रहेगा कि हम सब, आप ही नहीं, मैं भी, हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर है. सभी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है. जिंदगी में लास्ट ब्रेथ तक हम लोग सीखते ही चल रहे हैं. तो अभी जो बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे कि एनईपी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, देन आफ्टरवर्ड्स म्यूजिक एंड डांस मधु मैम ने डिस्कस किया. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हो और अभी यू आर एज गुड एज टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज इंटर्नशिप के लिए आप जाओगे, कोई भी स्कूल्स में जाओगे, मैं मेरी स्कूल में भी आपको मौका दूंगी कि आप आइए और हमारे बच्चों को आप साथ में बात कीजिए और हम हैंडल कीजिए. और इंटर्नशिप, इट्स अ टाइप ऑफ इंटर्नशिप. तो यहाँ मैं आपके से बात करना चाहूंगी. पहली चीज जो बताऊंगी कि स्किल्स, तो एनईपी जो स्किल्स के बारे में बता रहा है, तो एक छोटी सी वेरी शॉर्ट स्टोरी आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू. एक जंगल था और जंगल में राजा ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग स्कूल शुरू करते हैं. अभी सभी ने तो एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो गई. तो एडमिशन प्रोसीजर में वो लोग ने डिसाइड किया कि चलो सभी को एडमिशन दिया जाए. हम लोग, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, एंट्रेंस टेस्ट कुछ भी नहीं होगी, हम सबको इसमें एडमिशन देंगे. सभी ने, बर्ड्स, एनिमल्स, सभी ने, एंड कुछ भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, तो सभी एडमिशन में स्कूल्स में ज्वाइन हो गए. नाउ द स्कूल स्टार्टेड. इट वॉज वेरी नाइस. बहुत अच्छी तरह से चल रही थी स्कूल. पहली टेस्ट शुरू हुई, एग्जाम्स थी. अभी एग्जाम्स में एग्जाम्स की जो भी था, एक फ्लाइंग की एग्ज़ाम थी, फिर स्विमिंग की एग्ज़ाम थी, फिर वॉकिंग की एग्ज़ाम थी, रनिंग की एग्ज़ाम थी. सभी अलग अलग एग्ज़ाम्स ले ली जा रही थी. एंड दैट टाइम आफ्टर द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, एंड रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें सबसे बड़ी बात जो आई, वो सामने आई कि कोई भी एक भी पास्ट नहीं था. जो एग्जाम रिजल्ट आना चाहिए, कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया. राजा बता रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो गया कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है. फिर जब उन्होंने जो एवरेज और बाकी का जो ग्राफ निकाला, उसमें से पता चला कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फिश टू फ्लाई, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बर्ड्स टू, ऑल द बर्ड्स टू स्विम. एंड उसमें अगर बर्ड्स के पास से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो रन करे, तो you cannot expect all this thing. So the thing is that what I would like you also to teach your children when you become a teacher, that whenever the first day of my school is there, this story I always start the day with this story only, because everybody has got the skills. और NEP भी वही सिखाता है कि सभी अपने skills के हिसाब से child centric, जो राठौड़ सर ने बात की, child centric, तो that is very very important. जब आप भी क्लास लो तभी बहुत जरूरी है आपके लिए कि बच्चों को जो भी है उनके, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल अटेंशन तो है ही, पर साथ में उनको एक्सपोजर दो. और जो संजना मैम और सरस्वती मैम कर रहे हैं, आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, और इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए हैं, एजुकेशनिस्ट आए हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट. एंड हियर आई वुड लाइक टू जस्ट एंड, बट दिस इज, आई एम वेरी थैंकफुल once again, ma'am, Sanjana ma'am and Saraswati ma'am, for just conducting such a wonderful this session. And thank you children, for you all also. And we will be definitely meeting you every month and will be learning a lot. You also and we also. Thank you very much. जो भी इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारे स्पेशल एजुकेटर भी बैठे हुए हैं, हमारे अष्टवक्रा स्कूल के, उन सभी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी को.
जिन्होंने हमारे आए हुए डायस पे सभी बैठे हुए गेस्टों का इतना ध्यान से उनके एक्सपीरियंस सुने और बहुत इम्पोर्टेंट बातें उन लोगों ने बताई हैं, जो उन्होंने जीवन में फेस की हैं अभी तक की लाइफ में, जहाँ जिसने फेस की है। और जेसी गुप्ता सर ने एक बहुत ही वो बात बताई है इम्पोर्टेंट, कि जब तक किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं है उसे हेल्प मत कीजिए, उसे असहाय मत फील कराइए। कोई भी असहाय नहीं है, सब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। पूछ लीजिए अगर नीड की ज़रूरत है, उसे हेल्प की ज़रूरत है तो उससे पूछ के आप हेल्प कर सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ सुना है, कल से हम सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, बट उस सुनने को इस सभागार तक नहीं छोड़ के जाना है। आपको जीवन में जहाँ पे जो चुनौतियाँ आती हैं उनका सामना करना है। उन सिचुएशंस को सोच के, देख के, किस तरह से मुझे बताया गया था और किस तरह से हमें हैंडल करना है। हमारा सब्जेक्ट जो हमारा CRE का टॉपिक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।